जय श्री माता जी। सुबह के सत्र में आपका स्वागत है। 24 मई 2025 अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन सहज योगा सुबह 4 बजे प्रतिष्ठान पूर्ण से प्रसारित का पुनर्प्रसारण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता। जय श्री माता जी। आज के सामूहिक ध्यान सत्र में उपस्थित सभी सहजी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ध्यान की शुरुआत कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हुए करेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र।
साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिएगा। पूरा चित्त हमारे सहस्त्रार में ही रखेंगे। इसी ध्यान की स्थिति को बरकरार रखते हुए हम अभी श्री माता जी की अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। Today you all have gathered here to do the Guru Puja. Your Guru is a mother first and then a Guru. And that has given me a greater help. We have had before also many Guru Pujas, mostly in England. And you should wonder why Mother always somehow is doing Guru Puja in London. The time falls in such a way that it is in Guru Puja. I am here. During that time, I have to be in London. So many years we have been doing Guru Puja in England.
All things happen if according to Rutambara Pragya, then there must be some reason why Mother is here in England for a Guru Puja. It is stated in the Puranas that the Adi Guru Dattatreya worshipped Mother along the banks of the river Tamasa. Tamasa is the same as your Thames is. And he himself came and worshipped here. And the Druids, those who had the manifestation of the Stonehenge and all that, are originated from that time in this great country of Shiva or the spirit. So the spirit resides here as in the heart of human beings. And the Sahasrara is in the Himalayas where Sadashiva exists at the Kailasha. This is the great secret of we having so many Guru Pujas here. To culminate it today into this special type of Guru Puja in the year of the 60th birthday of your mother has a special, very, very special significance because it's the Guru Sashti. It's the 60 years of your Guru has been celebrated today. And that's how it's a very big occasion that you all have gathered under the influence of again Rutambara Pragya. So all that has happened by the nature's own gift to you. And everything has worked out so well because that was the desire of the divine and the design of the divine. So the river Thames, which we call her as Thames, you see English have a method of making everything English. Like Bombay they made it, Mumbai was Bombay. You see, like Calcutta, like all other words were like that. Like Varanasi was made into Banaras. River Thames, which was really Tamsa, was called as Thames. Now from the name Tamsa, one should know that is a place of Tamoguna. It is a place where left-sided resided since long. So people were very worshipful, left-sided people, emotional type. And they worshipped God more than that they went into yajnas and all that. And Dattatreya lived here and meditated on the banks of river Thames. That's why Guru Puja here has to give us the great background for your awakening of the Guru principle. We have to go to the roots of everything so that we understand the importance of it. Unless until you know the roots and the traditions behind, you cannot understand the depth, the gravity, the intensity of any puja. Today we have gathered here to do the Guru Puja. Again, the reason is we have got a Guru principle within ourselves, as I told you last time. And also I have given elaborately the 10 commandments as expressed within us, which are describing the different types of essences within us. The essence of Guru Puja has to be awakened within us. That's how we are having this
program here. Now, it is important that we have to establish the dharma within us. Without the dharma, you cannot have the ascent. And as I have told you before, that the cleanliness of your being depends on how much dharma you follow religiously. At the time of Moses, it was worked out, and all the rules and regulations were created for realized souls. But as I read in one of the books, it was very good, because if I had said this, people would not have believed, that it had to be changed. I think during the speech the children should not be here. It's better to take them out. After the speech you can bring them along. Those who make noises. Those who are quiet is all right, but those who are making noises, better to be out. If they are going to make noises, better to be out or near the door, so that if they make noises you can get out. So there is no disturbance. During the puja is all right. You could be at the gate, door, or some place from where you can go. So the laws and regulations that were given to human beings were actually for the realized souls who would understand. But when Moses must have discovered the way human beings are, he must have changed them to very strict rules, because with human beings as they are, one has to be extremely strict. They can't understand anything but fear. If you have a stick in your hand, you can put them back. Without that stick, human beings won't listen. They are only alright if there's a fear. Now if you see today, the condition of all the nations, those who are having leaders or prime ministers or presidents, they are all people extremely strict, very dominating, and very dry. And normally people like such people. Even Hitler succeeded because of that nature. So the character of a guru so far has been of a very strict nature for people who are not realized. Normally a good guru, Sadguru, he doesn't like to talk to people much. They throw stones, or they don't like to talk to people who are not realized. But if they are realized, then these gurus change their attitude towards the people who want to see them. There's a tremendous difference between a person who is realized and non-realized in the protocol of God. A man may be the king or anything, he'll be asked to sit outside. It has nothing to do with what position you enjoy. As long as he's a realized soul and not possessed, he's given the highest position. But if you are possessed, then also the guru will tell him that you get out from here, first get rid of your position and then come. And all these strict rules were there, that such and such person must be killed, such and such person must be given a punishment of cutting the hands, cutting the feet, even absolutely destroying the eyes. This was done because they were not realized souls. It was a great realization of Moses, I think, that he took to the another kind of law which is known as Shariat now, and that's what the Muslims are following. In a way it's good, I think, because people who are now normal people really deserve such a rule. But it should not be so fanatical that you cannot discriminate between a realized soul and non-realized soul. Now,
the Guru within you will be awakened if you are strict with yourself. That's one point is very important. Unless and until you are strict with yourself, the Guru will not be awakened with you. People who are lazy lumps, who cannot sacrifice anything, who are very fond of comfort, can never be Gurus. Take it. They can be good administrators, they can be anything, but never a Guru. A Guru should be willing to live the way he has to live. He should be able to sleep on stones. He should be able to sleep under any circumstances. Not that the disciple should force on him, but it should be his own nature that he can adjust himself. Comfort cannot crawl on a Guru. Now those who want your Guru principle to be awakened must know that you should not ask for comfort. Even for a thing like that, yesterday you saw the dancing. One has to do real tapasya. Intensive tapasya you have to do. You cannot learn even a thing like dancing without going into a penance about it. So a Guru has to go through a penance is important. Sahajogi need not go. But a Guru Sahajogi has to do it. We have to have penances. And the penance can be any kind of desire you have. Say, supposing you are very fond of food. Just don't eat the food that you want to eat. If you are very fond of sweet food, then eat something very bitter, raised to power 108. And if you are fond of some sort of a very, as Indians are sometimes, very spicy food, then eat so bland a food without salt. Teach your tongue to behave itself. It doesn't behove a Guru to put his attention to food. I have seen some of the Sahajogis, they are all right when the food is there, quite concentrated. But when it comes to the program, they have no concentration. It's a sad thing. Such people cannot be Gurus. They can be cooks, good, or could be food tasters or something like that. We'll suit them better. But if they have to be Gurus, they must learn to control their tongue and their desire. I mean, fasting is a good thing for such people. Fasting is very good. All the time they are worried, what are we going to have for lunch? What are we going to have for dinner? Such people cannot have their Guru principle awakened, neither they can be Gurus. So please be careful. The Guru must have control over the tongue. He must know when to get angry and when to be gentle. He must know what to say when, how much to say. That's why many Gurus have been more effective by not speaking. Silence is the best way you can help others. But when it comes to explaining Sahaja Yoga, you should speak. But I have seen with some people, they are very eloquent when it comes to nonsensical things. But when it comes to Sahaja Yoga, they don't know anything about Sahaja Yoga. So you have to be the master of Sahaja Yoga if you have to be a Guru. Not only in talking, but in your behavior, in everything. And the karamat is the, I don't know if you use charismatic word, charismatic they call it, or you say the one how to do it, how to raise the kundalini, how to put it at the sahasrara, how to break the sahasrara, all these things you must know how to spend your knowledge. It's Bini Yoga in Sanskrit. Guru principle is awakened in a person when he himself has achieved something. Imagine a half-baked Guru going along talking as a Guru. He'll end up as a disciple ultimately. So you have to be master of your own. But when the Guru principle comes in, you have to give it to others. It's a question of giving it to others. So you have to be at a higher level to give to others. Have to be at a very high level.
If you are attached to money, if you are attached to food, if you are attached to mundane things of life, you cannot give. Now the higher state than that can be achieved, which is natural in me, but can be achieved, is that you don't have to have any dependence like that any rules and regulations. Like saying that I will have no worry about food, I should fast, this, that. It all ends up when you eat but don't eat. That's the state one should have. That you are eating the food, and if you ask, did you have your lunch? I don't know. Will you have your lunch? I don't know. Absolutely indifferent to the problems of the body. Where did you sleep? I don't know. What did you eat? What will you have? I don't know. This kind of a state is called the Atita state, where you go beyond. And whatever you do, you are doing it because it is to be done without paying any attention to it. It's automatic. Nothing is important. But this is, before becoming Atita, you have to tell yourself, nothing is important. You see, is a avirbhava, as they call it, is a kind of a drama you have to put in. Oh, nothing is important, this carpet is not important, I should try to sleep on the cement. First you have to do that. But after some time, it happens that you don't remember whether you slept on the cement or on a cot. Where did I sleep? I don't know. That is the Atita state. And that state is to be achieved now by many Sahajogis. In a state where you go beyond. Say there is somebody who is before you and you have to get angry. All right, you give me left, right, nicely, and then you're smiling next moment. Did you get angry with that person? I don't know. Did I? Like Buddha once said something in one village, and there was a horrible fellow who got up and said lots of things to him. And when he went to the next village, the fellow felt that, oh, I should not have done that, left Vishuddhi perhaps. So went down and said, I'm sorry sir, I've said so, and I should not have said it. I didn't know you are the enlightened one, so it happened, so you forgive. He said, when? When did you say it? He said, in the last village. Oh, everything in the last village, I'm left there alone. I don't know. That is the Atita state you have to get. So, even not to feel is not important. These identifications, when they drop out completely, then you are doing things in a karma state, where like sun is shining, it doesn't know it is shining. When the vibrations are flowing, you don't know it is flowing. Already it has started working in. You are surprised, you raise the hands and the Kundalini is rising. You don't know you are raising the Kundalini actually. How do you raise it? You don't know. That's it. That state has already started Atita in you. But get it established in every walk of life, everything that you go beyond. And if you can manage that, that's the highest that you have to reach. Now, with the incarnations, it's very different. It's the other way around. Everything is the other way around. They don't have to do any tapasya. They don't have to starve. They don't have to tell them. Whatever they do is the punya.
They don't have to collect punyas either. If they kill somebody, it is dharma. If they hit somebody, it is the dharma. Nothing they do wrong. They are absolutely immaculate. If they deceive someone, they cheat someone, it's perfectly alright. Because for a higher goal, you have to give up this smaller goals. It's justified in our day-to-day life, you see, that when you are defending your country, there's an enemy on you. If you have to defend your country, you can slay him. You can cheat him. Diplomatically, you can befool him. It's allowed. Why? Because for a higher goal, you have to give up the smaller goal. But for an incarnation, it is always the higher goal. He's not bothered about smaller goals at all. He doesn't have to wait, think, rationalize, or to train himself or do some drama or anything. It's all done. Even the movement, every movement of an incarnation has a ripple in it, which is for the good. There's nothing, not even a moment is such which is not for the good of the world. So the incarnation is a very different thing that is not to be achieved, that has to be. Now, for example, the incarnation is the bhokta, is the enjoyer. He is the enjoyer of everything. Many people say have created. Now we have a carpet here from Turkey. These carpets were created by Turkish peoples some time back for an incarnation to see. So the Uttamara Pragya will bring it round in such a way that at least I see it. Or I have it. So that their souls will be blessed. So that they feel nice. Like Michelangelo has made that not for popes, I can tell you. And not for all the rubbish people who go there. Neither Blake did all that work for the useless people who want to go and see nude artists. It was all done for the incarnation to see. That's the way they are blessed the most. Because they are beyond. Nothing touches them. Nothing is important. But it's not rational or anything that they have trained themselves. But it is automatically like that. Like Sri Krishna had to marry 16,000 women. Can you imagine? In those days of monogamy, he would be prosecuted 100 times. The reason was he has 16,000 powers. And he was to be born with those 16,000 powers on this earth. And 5 elements became his queens. He had to do some justification to have them around. And as I have now Sahajogis whom I have given realization. So automatically I am your mother is established. But for him there was no way out but to marry his 16,000 powers. And so he married. But he was never married. He was a bachelor out and out all his life. Because he's Yogeshwara and he's a brahmachari. Who can marry him? So for them, all these worldly things are just a drama, has no meaning at all. It's just a drama. A person who is not an incarnation should not try to be. That's not the right of a human being. Like a policeman standing on the road, if he puts his hands right, left, we follow it. But you ask some madman to go and stand there, he'll be arrested. So for normal people, even you are a guru,
you shouldn't allow them to touch your feet. Only an incarnation's feet must be touched. And nobody else's feet must be touched. Of course, in Samayachar, like as we have in India, the custom to touch the feet of the father. But because the father is a representative of the father in you, that's what the mother. But that's symbolic. But in reality, you are not to surrender yourself to anybody else but to an incarnation. Also, if there's a teacher in your any art or in any way, your master, you must touch his feet. Even to take his name, you have to pull your ears. But nobody who is a human being should make touch your feet, especially the Sahajogis should not. Nobody should ask anyone to touch your feet. As an elder you may. That's a different point, but not as a guru. It's a very dangerous thing. Once you start it, you know what it happens with so many. They are just gone out of such. So to develop the Guru principle within you, first of all, you must develop yourself fully. Now, how to develop yourself for Guru principle, one must see. We have got the 10 principles within you, as I told you before. And we should develop these all 10 principles in such a way that we stand out from others. Yesterday, as I told you, that when we do Dhyan, Dharana and Samadhi and achieve the blessings of the Rutambhara Pragya, then put that whole thing onto different areas, as called as Desh or Bhumi. How you spend them is the point. It's through mantras. Cleanse it through mantras. Cleanse it through your attention. Every day you must know which chakra to be cleared up. You must know about yourself, where is the problem, how it is to be cleansed, how we have to clear it out. Do not take it for granted. Many people who have got, say, left-sided problem, you will just bring them lemon and chilies and think our mother has done the job. क्या आपको भी हर 10 दिन बाद बालों में कलर करना पड़ता है, जिसमें मिक्सिंग से लेकर बालों में लगाने और धोने तक 5 घंटे बर्बाद हो जाते हैं? तो ये जापानी हेयर डाई आपके लिए ही है। इसे बालों पर लगाना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की मिक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बस बोतल से इसे शैम्पू की तरह निकले अप्लाई करे और 10 मिनट बाद वॉश करे। साथ ही यह आपके बालों को कम से कम 6 महीने तक सफेद या ग्रे होने से बचाएगा और मजबूत व सीधे भी बनाएगा, क्योंकि इसमें है सिर्फ जापानी फॉर्मूला, जिसमें बायोटिन और कोलेजन शामिल हैं। आपको बस इसे शैम्पू की तरह बालों पर लगाना है और 10 मिनट बाद साफ पानी से धो लेना है। यह सीधे जापान से मंगाया जाता है, वह भी बिल्कुल किफायती दाम में, और यह विशेष संस्था द्वारा टेस्टेड है, इसलिए साइड इफेक्ट आनंद को प्राप्त करें। फिर कोई सोचता है कि अगर हम किसी मनुष्य मात्र को प्रेम करें तो उसी से हम सुख को प्राप्त कर लें। उससे आगे जब वो विशालता पे उठता है तो ये सोचता है कि हम प्राणी मात्र की सेवा करें, उनकी कोई भलाई करें, उनके उद्धारार्थ कोई कार्य करें, तो हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये सब मनुष्य की धारणाएं हैं। मनुष्य की धारणा से मनुष्य परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि परमात्मा असीम है और जो सीमित बुद्धि है उसके सहारे हम असीम पर उतर नहीं सकते। हमारी आज तक जो उत्क्रांति हुई है उसके बारे में अगर हम सोचें तो सभी कुछ सहज होते गया। आज जो हम आज इंसान बने हैं वो भी सब सहज हुआ है। हमने उसके लिए कुछ किया नहीं। जो भी कुंडलिनी आदि का इन्होंने आपसे बताया, ये सारी चीजें जो हैं ये आपने बनाई नहीं, ये अंदर बनी बनाई रखी हुई आपके अंदर स्थित है। आपने इसे अपनी उत्क्रांति में पाया हुआ, और इस उत्क्रांति में ये पाए हुए इस धन को आपको सिर्फ पाना है, उसको जान लेना है
और उसका स्वामित्व स्वीकार करना। अब ये चीज जो हम कह रहे हैं सच है या झूठ है, आपके अंदर है या नहीं, इसको एक शास्त्रज्ञ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसा ही हम कहेंगे कि जैसे कोई एक धारणा शास्त्रज्ञ बताता है, जिसे कि आप कह सकते हैं हाइपोथेसिस, उसके बाद उस हाइपोथेसिस को दूसरा शास्त्रज्ञ कहता है अच्छा इसको सिद्ध करके दिखाइए। अगर वो सिद्ध हो जाए तो उससे फिर कायदा माना जाता है, उसे लोग मान लेते हैं कि ये शास्त्र का कायदा है, इसलिए वो साइंटिफिक एक एक्सेप्टेड फैक्ट हो जाता है। इसी प्रकार धर्म में भी जब हम किसी चीज को मान लेते हैं तो ये जरूर जान लेना चाहिए कि धर्म में जो कुछ वर्णित है वो हम पा रहे हैं या नहीं। लेकिन धर्म के मामले में हमारी दृष्टि बहुत अंधी है। हम ये नहीं सोचते कि जो कुछ भी इसमें वर्णित है उससे हमने पा लिया। जैसे कि विशेषकर आज सवेरे ही बातचीत चली थी तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा हिंदू लोग अपने धर्म से बहुत अनभिज्ञ हैं। वजह हो सकती है कि इन लोगों को कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है, उससे फायदा भी है। अगर कोई धर्म आप ज्यादा से जरूरत से ज्यादा ऑर्गेनाइज कर लिए तो आदमी ऐसा बन जाता है जैसे कि किसी बैल को या किसी घोड़े को आपने आंख के सामने कुछ बांध दिया हो। लेकिन एक दोष ये भी आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए हम जो हमारा धरोहर है, इतने वर्षों से उपार्जित यहाँ का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उससे बिल्कुल अपरिचित है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। बड़ी आश्चर्य की बात है कि कितने ही लोगों को मैं जब कुंडली नहीं कहती हूँ तो वो सोचते हैं मैं कुंडली की बात कर रही हूँ, इसे कि हॉरोस्कोप कहते हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हम अपने मूलभूत तत्वों को तक नहीं जानते हैं। इस देश में जो इतने सालों से हजारों वर्षों से कमाया हुआ धन है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हमारी दृष्टि ही उस ओर नहीं है, हमारी दृष्टि ही बाह्य में, हम उसको जानना ही नहीं चाहते। जो हमारा धरोहर हजारों वर्ष से उपार्जित ज्ञान है उसके बारे में हम इस कदर अनभिज्ञ हैं, उधर कोई उत्कंठा नहीं, कोई विचार नहीं, और सोचते हैं कि हम लोग मानो जैसे कोई अंग्रेजों को ही बनाए हुए पुतले। इसके अलावा और हम चीज सोच नहीं पाते कि कितनी बड़ी परंपरा, कितनी बड़ी संपदा इस देश में हमारे लिए हमारे पूर्वज छोड़ गए। अब कहने की बात यह है कि हमारे अंदर ये संस्था पूरी स्थित है, पूरी तरह से विराजमान है। लेकिन सत्य को पाने वाले को पहले जान लेना चाहिए कि जो सत्य है सो है, उसे आप नहीं बना सकते। आप कहें कि नहीं हम तो ये सोचते हैं, हमारी ये धारणा सत्य के बारे में है, तो वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य जो है सो है। एक नम्र विद्यार्थी की तरह से आपको ये जानना चाहिए कि अभी हमने सत्य को जाना नहीं, इसलिए जो सत्य होगा उसे हम जानेंगे और जानना चाहेंगे। जब तक ये हमारे अंदर विचार जागरूक नहीं होता है तब तक हमारे अपने ही बनाए हुए पहाड़, बैरियर्स बने हुए हैं, उन पहाड़ों को लांघना बड़ा कठिन हो जाता है। सत्य क्या है? सत्य क्या चीज है? इसे हम कहते हैं सत्य। सत्य सत्य क्या चीज है? सत्य एक है सीधा साधा कि आप आत्मा है, आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि कुछ भी नहीं, आप सिर्फ आत्मा है। आप आत्मा है और वो आत्मा का प्रकाश अभी तक आपकी चेतना में या आपके चित्त में आया नहीं। जिस वक्त ये आपके चित्त में आ जाएगा तब आप जानेंगे कि ये आत्मा हमारे अंदर स्थित है, क्योंकि आपके नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप इसको महसूस कर पाएंगे। इसके लिए आपको कहीं किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप इसको खुद जान जाइएगा कि आपके अंदर ये चीज चल रही है, ये आपके अंदर विराजमान है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सृष्टि चराचर सृष्टि किसी ऐसे बड़े भारी शक्ति के साथ चल रही है जो इस कार्य में पूरी तरह से संलग्न है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। किंतु सोचिए कि ये जो फूल बनाए हैं, क्या हम ऐसे फूल बना सकते हैं?
क्या इन फूलों से जो फल बनते हैं वो हम कर सकते हैं? कोई सा भी जीवित कार्य हम कर सकते हैं? जो कार्य करते हैं सो मरा हुआ। समझ लीजिए अगर कोई पेड़ मर गया, उसे हमने टेबल बना लिया तो सोच लिया बड़ा भारी काम कर लिया, मरे से मरी चीज बना ली। और जब मरे से मरी चीज बना लेते हैं तो वो जो जड़ वस्तु है वो भी हमारे सर पे बैठ जाती है, क्योंकि जड़ और चेतन का हमेशा झगड़ा चलता है और आत्मा जो है उससे जड़ हमेशा भागता है। जब आपने एक बार कुर्सी बना ली तो कुर्सी आपके सर पे बैठ गई, क्योंकि आप कुर्सी के सिवा बैठ नहीं सकते, कुर्सी लेकर आपको घूमना पड़ेगा। जिस चीज की जड़ की आपने आदत लगा ली वो जड़ आपकी खोपड़ी पे बैठ गई। इसका मतलब सीधा ये है कि हम जड़ से जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं बनिस्बत चेतन से, और चेतन से भी अगर हो गए तो भी हम आत्मा के प्रति उतने उन्मुख नहीं होते हैं, उस तरफ हमारा इतना ध्यान आकर्षित नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि हम अभी तक उतने ऊपर देख नहीं पाते, उतने उन्नत नहीं। अब बहुत से संसार में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने बड़े महत् कार्य करके परमात्मा के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में, उनके बड़प्पन के बारे में, कुंडलिनी के बारे में सब कुछ बताया हुआ। लेकिन यह किंवदंती हो गई। लोगों को लगता है कि ऐसी बातें हैं, भगवान कोई चीज है नहीं, ऐसी बातें चल रही हैं। लोग भगवान की बात मात्र करते हैं और भगवान के नाम पर पैसा खसोटना, किसी में झगड़ा लगाना, किसी में परेशानी में डालना, मंदिरों में चरस बेचना आदि सब गंदे गंदे काम करते रहते हैं, और भगवान कोई चीज नहीं। बुद्धि के स्तर पे बात सही मालूम। मनुष्य बुद्धि से अगर सोचा जाए तो लगता है कि अगर भगवान है तो ये सब तमाशे क्यों? इसी प्रकार एक बार अल्जीरिया में बहुत से लोगों ने ये सोचा कि अगर अब फंडामेंटलिस्ट लोग यहाँ पर आ जाएं तो ये लोग आकर के वही हाल करेंगे जो खोमेनी ने किया हुआ है। इस वजह से वहाँ के बहुत से तरुण लोगों ने ये सोचा कि बेहतर है कि हम लोग कोई कम्युनिज्म को ही प्राप्त करें, उसी का अवलंबन करने से ही हम बच सकते। तो वो लोग कम्युनिस्ट हो गए। 500 लोगों ने एक अपनी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित की। Instamart, 10 minutes grocery app. Download today and get started. उनमें से एक भूला भटका लंदन चला आया और सहयोग में घुस गया। पता नहीं कैसे वो आया बेचारा, और उसके बाद वो पार हो गया। बहुत ही होशियार लड़का, बहुत शुद्ध प्रकृति का लड़का, मुसलमान लेकिन बहुत शुद्ध प्रकृति का। जब उसने पाया, उसने जाकर बताया कि नहीं भगवान तो है, लेकिन अभी हमने पाया नहीं था। 500 आदमियों को उन्होंने पार करा दिया और सबको प्लेन से लंदन लाए। लेकिन उन लोगों में जो उत्कंठा थी वो बड़ी जबरदस्त और गहन सी, बड़ी आंतरिक थी। जब तक इस तरह की आंतरिक इच्छा मनुष्य में सत्य को जानने की न हो, तब तक वो सत्य को प्राप्त करके भी खो सकता है। इसलिए आशा है जयपुर में भी ऐसे लोग बहुत से विराजमान होंगे कि जो इसको अत्यंत आस्था से जानना चाहेंगे कि हम क्या हैं, हम इस संसार में क्यों आए, परमात्मा ने हमें क्यों मानव स्थिति दी और इससे परे हमारी कौन सी स्थिति। इसी को जानना ही सत्य है। जिसने इसे जाना वही सत्य है। बाकी तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा ही हुआ है कि एक आत्मा ही, एक ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब भ्रम है। अब भ्रम की बात जो है वो इस प्रकार है कि अभी जो आप इस चीज को जान रहे हैं, समझ लीजिए आप कर जान रहे हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा, हो सकता है कि आपको भ्रम हो।
इसको सोच रहे हैं कि ये बड़े अच्छे गुरु महाराज जी हैं, हो सकता है कि ये कोई भ्रम हो। कोई भी चीज आप पूरे 100% नहीं कह सकते कि ये चीज बिल्कुल सही। वजह यह है कि अभी तक आपने वो जो एकाकी चीज है, जो एब्सोल्यूट चीज आपकी आत्मा है, उसे नहीं प्राप्त की। क्योंकि जब आप आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तब आप कोई भी चीज को रिलेटिवली यानी क्योंकि जब आप आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अब इन महाशय जी जिनको कि बुरी तरह से तकलीफ थी पेट की, ये 2-3 दिन बाद फिर आए। पहले माँ इसको तो ठीक करना ही होगा। मैंने कहा अगर ठीक करना है तो तुम्हें दत्तात्रेय जी को मानना पड़ेगा, नानक जी को मानना पड़ेगा। वो कहा जो भी कहोगी वो मानूंगा मैं। फिर मैंने उनसे कहा कि अब तुम प्रार्थना करो नानक जी से कि मुझे क्षमा करें, मोहम्मद साहब से भी प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करें, और उसके बाद उनका कैंसर भी ठीक हो। आपको आश्चर्य होगा कि आजकल इतनी संस्थाएं पॉलिटिकल भी, राजनैतिक आदि बन जाती हैं जिसमें लोग ये सिखाते हैं कि इनके धर्मगुरु खराब हैं, उनके धर्मगुरु खराब। वास्तविकता यह है कि इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो डिसाइपल्स हैं जो अपने एक धर्म के कहते हैं, मुसलमान उतने ही बुरे हैं जितने हिंदू, हिंदू उतने ही बुरे हैं जितने ईसाई, और ईसाई उतने बुरे हैं जितने और धर्म के लोग। इनके जितने भी डिसाइपल्स हैं इन्होंने अपने गुरु को पहचाना नहीं और उनके कहने के अनुसार बिल्कुल नहीं चला। इसका एक उदाहरण मैं आपसे दे सकती हूँ कि समझ लीजिए कि ईसाई लोग, ईसा मसीह ने अगर कोई बात खास कर कही होगी तो ये कि तुम लोग किसी भी मृत चीज के पीछे में मत, और भूत पिशाच आदि चीजों के पीछे में तो बिल्कुल नहीं जाना। किसी भी तरह से आपको चाहिए कि आप भूत पिशाच आदि जो कि डेड है उसे दूर रहें। इतनी खोल के बात मेरे ख्याल से जितनी ईसा मसीह ने बताई है सिर्फ नानक साहब ने बताई। इतनी खोल के बात बताने पर भी आप किसी भी ईसाई धर्म को जानने वाले या धर्म को पालन करने वाले या किसी भी राष्ट्र में जाकर देखें तो आपको आश्चर्य होगा। लंदन में जहां मैं रहती हूँ, हर एक चर्च के अंदर में नीचे मुर्दे गाड़े पड़े। आप वहां पांव रखे तो आपके पैर चटके खाते। हर एक चर्च के अंदर, मंदिर के अंदर उन्होंने मुर्दे गाड़ के रखे। जिस चीज को बिल्कुल मना किया गया था उसी को बराबर ये लोग करते। अब आप हिंदुओं की अकल देखिए, हिंदुओं की अकल उससे भी बढ़ के हिंदुओं के लिए बताया गया था कि सर्वधर्म एक ही है। इतना नहीं तो इतना भी बताया गया था कि तुम्हारे अंदर, सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है, एक ही परमेश्वर का प्रतिबिंब जो आत्मा है, सबके अंदर एक आत्मा का वास है। अभी जाति पाति लेकर के झगड़ा करने वाले हिंदुओं से बढ़ के तो कोई, जब सबके ही अंदर एक ही आत्मा का वास है और जब ये भी बताया गया कि तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, तब आज आप हिंदू हैं तो कल मुसलमान होंगे, कल मुसलमान है तो परसों ईसाई होंगे, नहीं तो आप कल चमार भी हो सकते हैं और नहीं तो आप और भी निम्न श्रेणी के हो सकते हैं। बड़े अपने को बड़े बड़े कहने वाले लोग जो कि अपने को बहुत सोचते हैं कि हम बड़े भारी हिंदू हैं, उनका व्यवहार ऐसा है कि चमारों से भी बदतर, उनसे शूद्रों से भी शूद्र, अति शूद्रों जैसे वो लोग आप देखते हैं जो मंदिरों में बैठ करके वहां दक्षिणा वगैरह लेते हैं। उनके बारे में आप अगर देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इनका और परमेश्वर का कहीं संबंध भी है कि ये परमेश्वर के दुश्मन यहाँ बैठे। मैं वृंदावन गई थी, वृंदावन में, और जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितने वहां पंडे बैठे हुए हैं सारे राक्षस हैं, राक्षस। और राक्षस ही नहीं है, सारे कंस के अनुचर हैं। वो कृष्ण के सामने बैठ करके कृष्ण की बदनामी कर रहे हैं। इतना नहीं, जो जितने भी आते हैं उनके अंदर भूत बनाए और सबका सर्वनाश कर रहे हैं। उन मंदिरों में से और उन सुंदर जगहों में से कृष्ण स्वयं उठ गए हैं, वो वहां रहना ही नहीं चाहते, ऐसी गंदी जगह। और आप आंखों से देखते हैं कि आपको रात दिन लूट रहे हैं, आपके साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं, आपको इतना झूठ बता रहे हैं, गांजा और क्या क्या ये चीजें होती हैं वहां बेचते हैं, औरतों को बेचते हैं, जेवर छुड़ाते हैं। कोई चीज उन्होंने छोड़ी नहीं, तो भी हम उनको महागुरु समझ करके सब उनके चरणों में चले जाते हैं। आपने ये सब काम किए लेकिन आपके बच्चे काम नहीं करने वाले। इसका दुष्परिणाम एक ही होने वाला है। वो दुष्परिणाम ये है कि आपके बच्चे कहेंगे कि ये परमात्मा कोई चीज नहीं, ये सब झूठ बात है, ये एक ढकोसला। इसका परिणाम अनेक देशों में हुआ है। जैसे
हमारे एक शिष्य हैं और वो अल्जीरिया के रहने वाले मुसलमान हैं। वो जब लंदन आए, लंदन में वो हमारे पास आए तो उनका कि माँ मेरा तो विश्वास ही नहीं भगवान। हमारे यहाँ जितने यंग लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वकील हैं, उनका कोई विश्वास परमात्मा पे नहीं। वो कहते हैं ये सब फेनेटिसिज्म है, सब झूठ है, ये पैसा कमाने के धंधे, और ये सारी संस्था ही बिल्कुल गलत है। उसके बाद जैसा कि सहयोग का एक बड़ा भारी वरदान रहता है, वो एकदम से पार हो गया। पार होने के बाद वो सहयोग में जम गए। उन्होंने 500 लड़कों को पार करा और उनका परमेश्वर पे विश्वास बिल्कुल दृढ़ करा दिया। क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम से, एक अति से दूसरे अति पे जाते हैं, तभी बीचों बीच ये गुरु तत्व आपको पकड़ लेता है। गुरु का मतलब वो होता है कि जो आपको घसीट ले, खींच ले, आकर्षण कर। लेकिन आजकल के गुरु जो आपको आकर्षित करते हैं वो अनेक नानाविध ऐसी ऐसी चीजों से करते हैं कि आप लोगों पे आश्चर्य होता है कि आप ऐसे गुरु लोगों को क्यों मानते हैं। यह तो कम से कम जानना चाहिए कि गुरु के अंदर कुछ न कुछ बेसिकली जिसे कहना चाहिए मूलतः उसमें कोई विशेषता होनी चाहिए। गुरु का मतलब है आपसे ऊंचे उठे हुए आदमी, आपसे एक ऊंची दशा में पहुंचे हुए आदमी। आपसे जो निम्न स्तर पे है वो आपके गुरु कैसे हो सकता है? जो आदमी पैसा खाता है आपसे, आपके पैसे पे जीता है, जो एक पैरासाइट है, आप कभी किसी के यहाँ जा करके मुफ्त रहेंगे, मुफ्त खाना खाएंगे? जो आदमी जिंदगी भर यही करता आया, वो आदमी आपका गुरु कैसे हो सकता है? वो आपका आश्रित हो सकता है, नौकर हो सकता है? वो आपका गुरु कैसे हो सकता है जिसने जिंदगी भर कोई काम धंधा नहीं किया और सिवाय आपसे पैसा लेकर के उस पर जीता रहा? इस तरह के पैरासाइट आप सुबह से शाम तक पालते रहते और उनके गुरु मान्यता मान करके और उनके लिए दुनिया भर की चीजें आप वहाँ भेजा करते हैं और उनको पूरी तरह से पूरी करते हैं। यहाँ तक इस चीज का पहुंच गया है मामला कि कुछ कुछ गुरु तो ये है कि अपने को सोने में, तो कभी हीरे में, तो कभी किसी चीज में तौल लेते और वो सारा तौल अपने पास लेकर के कहते हैं कि जो कुछ तुम मुझे दोगे वो तुमको परमात्मा के पास मिले। इस तरह की झूठी बातें अपने समाज में इतनी सुशिक्षित होते हुए भी हम लोग मान लेते हैं। मुझे आश्चर्य आप पे नहीं होता, मुझे ज्यादा आश्चर्य होता है उन परदेशी लोगों पर जो कि अपने को बड़े विद्वान और बड़े डेवलप समझते हैं। इतना गधापंती करते मैंने इन्हें देखा हुआ कि मैं अगर आपको उन लोगों की बातें बताऊं तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि इतने हद तक तो आप लोग जाते ही नहीं गुरुओं के मामले में। गुरु पर उनसे कहें तो उनकी विष्ठा भी ये खाने के लिए तैयार रहते हैं, इतनी इन लोगों पे हालत खराब है। तब विचार बनता है कि ये इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह से क्यों करते? गुरु तत्व में क्या खराबी आ गई? किस तरह से ये इसको मान लेते हैं? और इसका सीधा सरल, बिल्कुल बहुत ही सरल उत्तर ये है कि ये लोग गुरु तो नहीं है लेकिन ये हिप्नोटाइज करते हैं। इनमें हिप्नोसिस की पावर होती है जिससे आदमी को हिप्नोटाइज कर देते हैं। हिप्नोटाइज करने से आदमी की बुद्धि सारी नष्ट होकर के वो पूरी तरह से इसमें बहता चला जाता है। ऐसे अनेक गुरु इस कलयुग में पैदा, उसमें से कुछ कुछ तो परले दर्जे के राक्षस हैं जिनको कहने एक बार देवी ने मारा हुआ फिर से वापस आ गए। और ये राक्षस लोग सारी राक्षसी वृत्तियां, सारी अनैतिकता, हर तरह की चीज आपको सिखाते हैं और आप मुंह बाहर देखते रहते कि क्या मेरे लिए प्रचंड पंडित प्रकांड बिल्कुल वेदांत सुना रहे। गुरु के जो गुण हैं उसमें से पहला गुण यह है कि वो आपके पैसे और आपके धन को ठोकरों पे रखता है। उसके आपसे कोई चीज की उसको परवाह नहीं, आप उसको बांध नहीं सकते। वो अपना लहर से चलता है। उसका मन हो तो आपसे बात करेगा, नहीं तो नहीं। आपके आगे पीछे दौड़ने वाला वो नहीं, क्योंकि मैं आपकी माँ हूं, मैं आपको समझाती हूँ और मैं आपसे समझाती हूँ कि बेटे अपने अंदर के गुरु को जानो, अपने रुख पहचानो। लेकिन जो जो मुझे मिले हैं बड़े पहुंचे, वो तो कहते हैं कि इन गधों को 50 गालियां सुनाते, माँ तुम क्यों रियलाइजेशन दे, इनको मरने दो थोड़े दिन, इनको ये होने दो। उनके तो वृत्ति इतनी अलग है, हाथ में वो लोग एक एक बड़ा बड़ा डंडा नहीं तो चिमटा लेके बैठते और या तो पत्थर लेके बैठते। कोई आदमी उनके पास आए तो उसको पत्थरों से मांगते भगा यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिला। माँ की दृष्टि और होती है और गुरु की दृष्टि और होती है, और माँ को गुरु जब बनना पड़ता है तो बड़ी परेशानी की बात है। फिर हृदय तो इतना भरा रहता है करुणा से और इतना साद्र हृदय रहता है, ये निर्वाज बिल्कुल जो प्यार बहा जा रहा है वो देने के लिए माँ इतनी तड़पती रहती है और उधर गुरुता की वजह से आपके साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन भी करना पड़ता है, आपको बताना भी पड़ता है कि बेटा ये गलत बात है। वो कहते भी तकलीफ होती है पर करना ही पड़ता है। ये गुरु तत्व आपके अंदर है, इसका आपने अनेक बार अपमान किया हुआ है, आपके अंदर बसा हुआ है। अब आपको आश्चर्य होगा कि साधारण मनुष्य में भी ये गुरु तत्व किस तरह से कार्यान्वित होता है। जैसे कि आप किसी के घर खाना खाने जाए, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो, और अगर आदमी वो दुष्ट प्रकृति का हो या खराब प्रकृति का हो, आप वो खाना पचा नहीं सकते, आपके एकदम उलट जाएगा। आप घर आएंगे कहेंगे बाबा रे बाबा ऐसा पता नहीं क्या था, वहां अलग जी मचलने लग गया। कभी कभी तो यह होता है किसी आदमी देखो चक्कर आने लग जाता है कि पता नहीं ये आदमी है। इसी प्रकार एक दिन हम कहीं खाना खाने गए थे
तो बहुत ही वो शरीफ आदमी लग रहे थे, उनकी बीवी थी, 3 बच्चे थे, बड़े शरीफ कर बन के घुमा करते थे। और जाते साथ मेरी हालत खराब हो गई, मैं साथ के साथ चलो अब घर मेरे बस का नहीं। अब भैया ऐसा कैसे, अब तुम तो चीफ गेस्ट हो यहाँ पर। मैंने कहा चाहे जो भी हो, मेरा हाल खराब हो, घर चलिए, आप मेरे बस का नहीं। यहाँ तो कुछ बड़ी बड़ी आतंक की बात चल रही। जब मैं घर पे चली आई, उसके बाद 8 दिन में एक छोटी सी लड़की, हमारी लड़की साथ पढ़ती थी, वो आई। तो मैंने उनसे पूछा, उसका भी नाम वही था जो महाशय का था। तो मैंने कहा क्या तुम इन्हें जानती हो? कहले वो तो मेरे पिता। मैंने कहा तुम्हारे पिता तो तुम्हारी ऐसी दशा को? कहले उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया, मेरी माँ की सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब इस औरत को रखा हुआ है घर में, और ये 3 बच्चे जो हैं वो ऐसे ही उनके आए। और उसके आंख से एकदम आंसू छलछला पड़े। कहले मेरी माँ बहुत सरल स्वभाव की थी, इतनी रोई, इतना छीका, पर इन्होंने उसे छोड़ दिया और इस औरत को अपने पास रख लिया। अब देखिए कि उस घर में जो दुख था, उस घर में जो तकलीफ उस औरत की थी, उससे सारा वातावरण बिल्कुल दूषित था। और मैं वहां उनकी सारा जो आमोद प्रमोद हो रहा था, उसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं ले पा रही थी। मेरा जी खुद इतना दुखी हो रहा था, आंखों से आंसू बार बार टपक पड़ रहे थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इस वातावरण में ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सा दुखी जीव है जो कि मेरी आत्मा को अंदर से खींच रहा है। और ये बात आप समझ लीजिए कि आपके भी गुरु तत्व में है। आप किसी के घर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको उनका अन्न पसंद नहीं आता। यह सब गुरु तत्व आपके अंदर है, लेकिन आप उसे जागरूक नहीं रखते। अब गुरु तत्व को मारने के तरीके क्या है वो मैं आपसे बताऊं। मनुष्य किस तरह से अपने गुरु तत्व को मारते रहता है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है मैं माँ हूँ, जो सही बात है मैं आपको बताऊंगी और मुझे बतानी पड़ेगी, उसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं। सब लोग समझ से इस बात को समझ लें कि हम अपने गुरु तत्व को हर समय खराब करते रहते हैं, और किस तरह से हम अपने गुरु तत्व को खराब करते हैं वो देख लीजिए। एक तो गुरु तत्व में हमारे अंदर जो चेतना है, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, इसको संभालने वाला हमारा लिवर है, इसे यकृत कहते हैं। जब तक हमारा यकृत ठीक रहेगा, हमारी अवेयरनेस चेतना ठीक रहती है। और जैसे ही हमारा यकृत खराब हो जाता है, हमारी चेतना मचलने लग जाती है। आपने देखा होगा जिसे पित्त होता है, उस आदमी ने देखा होगा कि जब भी पित्त वाला आदमी जरा सा कुछ तला हुई चीज खा ले, उसको फिर से वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। पेट के अंदर आपकी अवेयरनेस को पोषित करने वाला ये यकृत है, और इसलिए यकृत का ठीक रखना बहुत जरूरी है। अब यकृत क्या करता है? यकृत जो भी कुछ, ये लिवर जो है, ये जो भी कुछ हम जहर खाते हैं, जो भी हमारे अंदर गलती से चला जाता है, उसको अलग कर देता है, उसको एनालाइज कर लेता है, और जो कुछ भी जहर है उसको खून के द्वारा वो खून में लौटा देता है। इसको कहना सॉर्टिंग आउट ऑफ द पॉइजन। वो सारा काम लिवर करते रहता है। अब इसका बिगड़ना बहुत देर से पता चलता है, धीरे धीरे ये काम होते रहता है। पर कोई ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ये यकृत या ये जो लिवर है हमारे पेट के अंदर राइट साइड में, ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो यकृत के विरोध में है वो है शराब। जितने भी गुरु आज तक संसार में हो गए, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मोसेस हो, चाहे वो लाओत्से हो, और चाहे वो सोक्रेटिस हो, ये सारे गुरु तत्व हैं। सारे ही गुरु तत्वों ने अवतार संसार में लिए थे, वो सब लोग ये गुरु हैं। इसमें से कोई भी गुरु हो, सब ने कहा है कि शराब पीना मानव धर्म के विरोध में, क्योंकि अपने 10 धर्म पेट में है। उस 10 धर्मों पे आक्रमण होता है, जबकि हमारी चेतना पे आक्रमण होता है। अगर मनुष्य की चेतना ही कम हो जाए, जब वो चेतना के ही विरोध में बैठती है चीज, तो वो हमारे लिए गलत है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिष्य थे, जिन्होंने सहयोग में ही इस पर बड़ा काम किया, और उनको अब इस पर डॉक्टरेट मिली हुई है लंदन में। मॉरिशस के रहने वाले, उनका नाम रेजिस है। उन्होंने अब ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह से शराब हमारे विरोध में पड़ती है, क्या वजह है। अब ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है, इसे आप समझ लें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ पानी का एक परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें से ऑक्सीजन एक है उस परमाणु में, और 2 हाइड्रोजन के अणु हैं। इस प्रकार 3 अणुओं से बना हुआ एक परमाणु है। अब जब न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो ऑक्सीजन बीच में रहता है, दोनों साइड में हाइड्रोजन रहता है। जब रक्त में पानी, रक्त का पानी जब हमारे लिवर के पास जाता है, तब लिवर से ये जो पानी है, ये जो कुछ भी उसके अंदर बसा हुआ जहर है, पॉइजन है, उसे खींच लेता है। अगर न्यूट्रल स्टेट में रहा तो बहुत ही आसान है। लेकिन जबकि समझ लीजिए ये लिवर है, और लिवर में ऐसे न्यूट्रल स्टेट में वो आ जाए तो वो ले सकता है। लेकिन अगर समझ लीजिए इस तरह से हो जाए तो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाता। जब आप शराब पीते हैं तो शराब के फर्मेंटेशन के प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन नीचे आ जाता है और हाइड्रोजन ऐसा आ जाता है, और ये कुछ भी रिसेप्शन नहीं हो पाता, कुछ भी ले नहीं पाता, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। इसके कारण
उसके अंदर का जो पॉइजन है वो वैसे ही बना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई आदमी शराब पीता है लेकिन उसे टेम्परेचर नहीं आता। अगर आदमी शराब पीने से उसे टेम्परेचर नहीं आता, उसके अंदर की जो हीट है वो सिर्फ लिवर में या किसी न किसी ऑर्गन में जमा होती रहती है। लेकिन जो पानी है, जो कि हमारे खून में बहुत ही जरूरी चीज है, वो पानी इस तरह से हो जाने की वजह से वो उसको शोषण नहीं कर पाता और हर एक जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं, पहले तो लिवर चौपट होता है, उसके बाद हर एक ऑर्गन धीरे धीरे वो सब में गर्मी आने लग जाती है और ऐसा आदमी गर्मी से झुलसते जाता है। लिवर भी यही चीज होती है, ऐसा नहीं है, सारे ही ऑर्गन से थोड़ा थोड़ा होता है। अब यही बात बढ़ करके बहुत बड़ी हालत में कैंसर में होती है। कैंसर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इस तरह से हो जाते हैं, बहुत ही इस तरह से हो जाते हैं जिससे रिसेप्शन नहीं होता है। और इसलिए आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट्स को जब तक बिल्कुल बुरी हालत ना हो जाए बुखार नहीं आता। मुंह पे चट्टे आएंगे, काले चट्टे हो जाएंगे, बदन पे चट्टे आएंगे, तरह तरह की चीजें होंगी, गर्मी बदन में लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन उसको टेम्परेचर नहीं। अब ये बात जब उसने पता लगाई, आप सोचिए कि इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्टरेट दे दी। अब ये बात निर्विवाद है, चाहे आप बुरा माने चाहे भला माने, कि शराब पीने से आपकी चेतना तो कम होती है लेकिन आपके अंदर का पॉइजन बना रहता है। और दूसरी बात उससे ये होती है कि आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज का भी पॉइजन आप खींच नहीं पाते। और क्योंकि इस तरह से हाइड्रोजन का जो इस तरह से झुकाव हो जाता है, उसके कारण एक हार्डनिंग जिसे कहते हैं वो आर्टरीज में हो जाती है। और वो हार्डनिंग जो हो जाती है, इसकी वजह से आर्टरीज जो है वो शराबी आदमी की एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इसलिए उसका खून नहीं सरकता और उसको ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि हार्ट, और हार्ट के अलावा जिसे कहना चाहिए गैंग्रीन आदि, जिसमें कि खून जाकर एक जगह जम जाए और ये सड़ जाए फिर ये सड़ जाए। मैंने इतनी दुर्दशा करने की क्या जरूरत है। वास्तविकता शराब चीज जो है, फर्मेंटेड शराब जिसे कहते हैं, एक तो होता है कि वाइन, वो तो बहुत अच्छी चीज है कि जिसमें कि फर्मेंटेशन नहीं हुआ, जो कि सिर्फ रस हो द्राक्ष का, वो तो वाइन हो। पर जो जिसको हम लोग वाइन समझते हैं, वो जो अल्कोहलिक वाइन होता है, वो जो शराब होती है, उस शराब को परमात्मा ने इसलिए बनाया है अल्कोहल को कि कोई चीज को पॉलिश करने के लिए। हर एक चीज को पॉलिश करना हो, जैसे आपको डायमंड्स उसको पॉलिश करना तो आप जिन से करिए, कोई चीज को पॉलिश करना तो स्पिरिट से करिए, ये पॉलिश है। और यही पॉलिश जाकर के हमारे आर्टरीज में जब जमते जाता है तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज तो होगी। भगवान ने कोई पीने के लिए शराब नहीं बनाई थी, लेकिन मनुष्य का दिमाग जो है बंदर के जैसा है, उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या चीज करनी चाहिए। अब वो जाकर के जरूर शराब पिएगा। शराब पीने को उसको कहीं कहा नहीं था, पता नहीं उसको कहाँ से एक को मिल गया, उसने अपना शराब लेना शुरू कर दिया, शराब पे शराब पीने लग गया, उसकी जो आर्टरीज थी वो थिकनिंग होने लग गई। और उसमें मजा इसलिए आता है कि आदमी की जो चेतना है वही गुम हो जाए। मनुष्य को यह इसलिए अच्छा लगता है कि उसकी चेतना गुम हो जाए, क्योंकि वो अपने को देख नहीं पाता, वो अपने को समझ नहीं पाता, असलियत से भागता है, वो असत्य पे रहना चाहता है। सत्य क्योंकि उसको लगता बड़ा भयंकर है, भयानक है। ऐसी बात नहीं, सत्य अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मनमोहक है और बहुत ही शांतिदायक और सारे सुखों का आगर सत्य। लेकिन अभी आप उस हालत में हैं कि न तो आपने सत्य पाया है और न तो आप असत्य में, जो आप बीच की हालत में मानव दशा में आ गए हैं। इसीलिए प्रश्न आया, इसीलिए इन गुरुओं का जन्म हुआ कि आपको समझाएं कि ये बीच की हालत में आज आप पैदा हुए हैं। इसमें इतनी घबराने की बात नहीं, इसमें समतोल रहे, अति पे न जाओ, असंतुलन पे मत जाओ, अपना जीवन अच्छा बनाओ, अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में नम्रता से रहो, अपने घर में और अपने व्यवहार में, अपने समाज में सबका विचार रख के संतुलन के साथ रहो। यह नहीं कि एक आदमी बहुत ज्यादा